Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start our new subject, that is science, from NCERT syllabus of class 6th semester 2. So we are going to start from chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. पहेली and भोजो went on vacation to many places of interest. तो पहेली और भोजो अपनी छुट्टियों के दौरान कई जगहों पर घूमने गए. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. तो ऐसी ही एक यात्रा उन्हें ऋषिकेश में गंगा नदी तक ले गई. वे हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ गए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी. They saw many kinds of trees on these mountains. Oaks, pines, deodars, very different from the ones near their homes on the plains. तो उन्होंने इन पहाड़ों पर कई प्रकार के पेड़ देखे, जैसे ओक, पाइन्स, देवदार. ये सभी पेड़ उनके घर के आसपास के मैदानी इलाकों से बहुत अलग थे. Yet in another trip they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees. तो अब उन्होंने क्या किया, दूसरी यात्रा में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और गर्म रेगिस्तानों में ऊँटों की मदद से यात्रा करी. उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत ही अलग अलग तरह के कैक्टस के पौधों को इकट्ठा किया. अंत में वो पुरी की यात्रा पर गए जहां उन्होंने बीच पर कैसुरिना पेड़ देखे और समुद्र तट का दौरा किया. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, that is living creatures of various kinds. तो इन सभी यात्राओं को याद करते हुए उनको एक विचार आया. उनको ऐसा लगा कि ये सभी जगह एक दूसरे से कितनी अलग थी. कुछ जगहों पर ठंडी थी, कुछ जगह बहुत गर्म थे, कुछ बहुत ड्राई थे और कुछ बहुत ह्यूमिड थे. ह्यूमिड यानी कि नमी वाले थे. लेकिन फिर भी उन सभी जगहों में से कई जीव यानी कि जो जीवित प्राणी थे वो अलग अलग तरह के थे. They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bhojo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. तो उन्होंने पृथ्वी पर एक ऐसी जगह के बारे में सोचने की कोशिश की जहाँ शायद कोई जीवित प्राणी न हो. भोजो ने अपने घर के पास की जगहों के बारे में सोचा. घर के अंदर उसने अलमारी में देखा. उसने सोचा था कि यहाँ कोई जीवित जीव नहीं हो सकता, लेकिन उसने अलमारी में एक छोटी मकड़ी को पाया. घर के बाहर भी उसने ऐसी कोई जगह सोची नहीं थी जहाँ जीवित प्राणी नहीं थे, जो कि आप 9.1 फिगर में देख सकते हो. तो पहल ने दूर स्थानों के बारे में सोचना और पढ़ना शुरू कर दिया. उसने पढ़ा था कि लोगों ने ज्वालामुखी के जो ओपनिंग जगह होती है वहाँ पर भी छोटे जीवों को पाया गया है. 9.1 Organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bhojo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. The deserts and camels, the mountains had goats and yak. Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. तो एक दूसरा विचार जो पहल और भोजो के मन में आया वह ये था कि उन जीवों के प्रकार के बारे में था जो विभिन्न स्थानों में मौजूद थे. जब उन्होंने दौरा किया था तो रेगिस्तानों में ऊंट, पहाड़ियों में बकरी और याक थे. पुरी में कुछ और जीव थे. समुद्र तट पर उन्होंने केकड़े देखे. ऐसी कई तरह की मछलियाँ को उन्होंने समुद्र में मछुआरों
को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता था उन्होंने देखा। और इसके अलावा कुछ जीव जैसे चींटियाँ इन सब जगहों पर मौजूद थे। तो इनमें से हर एक जगह पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे दूसरी जगह के पेड़ पौधों से अलग थे। वॉट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन्स वेयर दे द सेम। तो इन सभी जगहों की सराउंडिंग्स अलग है, तो क्या ये सब एक जैसा है? Now activity 1 is given. Let us start with a forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List things, animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in the libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी 1 दी गई है। तो हम एक जंगल से शुरू करते हैं। उन सभी पौधों, जानवरों और वस्तुओं के बारे में सोचिए जो वहाँ पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल 9.1 के कॉलम 1 में आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, जैसे कि दूसरी जगहों पर पाई जाने वाली चीज़ों, जानवरों और पौधों के बारे में आपको इसमें लिख सकते हैं। तो इस टेबल को फिल करने के लिए आप इस चैप्टर के थ्रू जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे कलेक्ट कर सकते हैं। टेबल को कंप्लीट करने के लिए और भी एग्जाम्पल ढूंढने के लिए अपने दोस्तों या फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इवन इसके अलावा आप लाइब्रेरी में से काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स से अलग अलग जगहों के जानवरों, पौधों और मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils or pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5. So there could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. तो कोशिश करें कि इस टेबल को, इसका जो हर एक कॉलम है उसमें जो आपको डिफरेंट जो पौधे दिए हैं, जानवर के बारे में हैं, वस्तुएं हैं, भले ही वो छोटी हों या बड़ी हों, उन सभी चीज़ों को आपको इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर भले ही वो ड्राइड यानी कि जो सूखी पत्तियाँ हैं या एनिमल्स के पार्ट्स हैं जैसे बोन्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, सॉइल्स है, सॉइल यानी कि जो मिट्टी है, पत्थर है, ओशन में जो सॉल्ट है जो डिज़ोल्व हो चुका है, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, तो भले ही वो कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको इसमें ये टेबल को फिल करना। नेक्स्ट 9.2 दैट इज़ हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in the table 9.1. Did you list very different kind of organisms in these two columns? तो यहाँ अभी आपने जो भी अगर जो लिस्ट बनाई है, जो पेड़ पौधों और जानवरों की जो भी लिस्ट बनाई है, उससे आपको क्या आप पाते हैं कि आपको उनमें एक बड़ी आप कह सकते हैं विविधता मिली, मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ें मिली। तो आपको इस टेबल को फिल करना है और फिर इसे ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग जगहों में जो जीव हैं, पौधे हैं, वो अलग अलग होते हैं। नाउ व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स? तो इन दो जगहों में क्या जो सराउंडिंग्स था वो कैसा था? इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन दैट इज सॉल्टी वाटर. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर. तो समुद्र में पौधे और जानवर खारे पानी में घिरे होते हैं, उसमें से ज़्यादातर पानी में जो ऑक्सीजन है वो हवा में मतलब घुली होती है, मिक्स होती है और उसका वो उपयोग करते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. तो आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है. रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत ठंडे होते हैं. रेगिस्तान के पशु और पौधे रेगिस्तानी मिट्टी में रहते हैं और वे अपने सराउंडिंग से ही सांस लेते हैं.
The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in these two regions. Isn't it? Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. तो समुद्र और रेगिस्तान में अलग अलग सराउंडिंग है और हमें इन दोनों जगहों पर अलग अलग प्रकार के पौधों और जानवरों को देखने मिलता है। तो आइए हम रेगिस्तान से एक ऊँट और समुद्र से मछली के बारे में जानते हैं। तो एक ऊँट की शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना होता है कि वो रेगिस्तान में आराम से रह सकता है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उनके शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। वे मूत्र की बहुत छोटी सी मात्रा उत्सर्जित करते हैं। उनका जो गोबर है वो सूखा होता है और उन्हें पसीना नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत कम पानी खोते हैं, वे पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। Let us look at different kinds of fish. Some of these are shown in figure 9.3. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. This shape helps them move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. तो आइए अब हम अलग प्रकार की मछलियों को देखें। इनके बारे में आपको 9.3 फिगर में दिखाया गया है। मछलियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन क्या आप देख सकते हैं वे सभी अपने शेप के बारे में कुछ सामान्य होती है, मतलब सिमिलर होती हैं। यहाँ पर बताए गए सभी के पास एक सुव्यवस्थित आकार है जिसके बारे में आप चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आकार उन्हें पानी के अंदर मूव करने में मदद करते हैं। मछली के शरीर पर फिसलन के निशान होते हैं। ये फिसलन मछली की रक्षा करते हैं और पानी में आसानी से वो इधर से उधर जा सकती हैं। We have discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. तो हमने चैप्टर 8 में इसके बारे में डिस्कस किया है कि मछली के जो पंख हैं वो फ्लैट होते हैं और जो पूँछ है वो भी फ्लैट होती है और वो उन्हें पानी में दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर को एकदम संतुलित रखने में यानी कि बैलेंस रखने में मदद करती है। मछली में मौजूद गिल्स उन्हें पानी में जो ऑक्सीजन है जो घुला हुआ है यानी कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका उपयोग करने में मदद करती है। तो वी सी दैट फीचर्स ऑफ अ फिश help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. तो हमने ये देखा कि मछली की विशेषताएं उसे पानी के अंदर रहने में मदद करती हैं और ऊँट की विशेषताएं उसे रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करती हैं। तो वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features or certain habits which enable an organisms to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in the sea. तो हमने बहुत ही तरह तरह के जानवरों और पौधों के केवल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ही लिए हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। इन सभी प्रकार के जीवों में हम पाएंगे कि उनकी कुछ फीचर्स हैं जो उन्हें उस सराउंडिंग में रहने में मदद करती है, तो जिसमें वे आमतौर पर पाए जाते हैं। तो कुछ स्पेशल सुविधाओं या कुछ आदतों की उपस्थिति जो किसी जीव को स्वाभाविक रूप से एक स्थान पर रहने में सक्षम बनाता है उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। सभी जीवों का अडेप्टेशन उनके रहने की जगह के आधार पर अलग अलग होता है। तो यही कारण है कि मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती और एक ऊँट समुद्र में नहीं रह सकता। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले इस चैप्टर के भाग के साथ। बाय बाय।